Welcome back, students. So today we will discuss about chapter number 3, synthetic fibers and plastics. Clear? So before starting this chapter, I want to discuss with you about some fibers. As you all know that fibers are obtained from plants and animals, and we call them as natural fibers. Clear? Like cotton, wool, silk, jute. Got it? So except them, some fibers, or if you observe around us, हम यदि अपने आसपास में ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे कि मेनी मोर थिंग्स आर बीइंग मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. मीन्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट आर ह्यूमन मेड. Got it? But one thing is, with that human made materials are whatever the raw materials being used, जो कुछ भी raw materials use होता है बेटा, that is being obtained from nature. Clear? वो हमें क्या मिलता है? वो naturally ही मिलता है हमें. But by some chemical processes we convert that natural things into human made materials. Got it? So synthetic fibers and plastics are also an example of that. Clear? Let's see about this. Synthetic fibers and plastics are made up of molecules called polymers. ये बेटा एक मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिनको कि हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज पॉलीमर. गॉट इट? नेक्स्ट सी, पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स यूज मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन्स मेड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ सिमिलर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स. यानी पॉलीमर्स कैसे बने हैं बेटा? ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट दैट कॉम्बिनेशन ऑफ a number of monomers. Clear? स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोमर्स. इनको कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलता है? वी ऑब्टेन पॉलीमर्स. क्लियर? एंड द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग और लिंकिंग टुगेदर ऑफ द मोनोमर्स, जो प्रोसेस होता है बेटा इनका लिंक करने का, कंबाइन करने का, मोनोमर्स का, to form a polymer, that process is known as polymerization. What? Polymerization. Clear? We call it as whatever the process that is being used for linking together the monomers to form a polymer, we call it as polymerization. Got it? And these monomers are linked in two ways. First one is linear. Linear की बात करें बेटा तो suppose this type of linking, clear, or this type of combination, it is called as linear. But cross linked में in cross linked what will happen? This, see, got it? So this one is linear linking and this one is cross linking. Clear? And we can compare these polymers or this linking as a garland. Got it? For example, like we used to prepare a garland with help of some flowers. हम फ्लावर्स को क्या करते हैं बेटा? एक एक करके अटैच करते हैं और एक गार्लैंड बनाते हैं, एक माला बनाते हैं. ठीक है? सेम थिंग इज हियर ऑल्सो. गॉट इट? सो नाउ कम टू सिंथेटिक फाइबर. हाउ वी कैन डिफाइन इट? So synthetic fibers
द मैन मेड पॉलीमर्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, मेनली बेटा मैन मेड पॉलीमर्स, ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर इज अ मैन मेड पॉलीमर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, क्लियर, and we call it as synthetic fibers. For example, we have some synthetic fibers like rayon, nylon, polyester, acrylic. Got it? So as we had already discussed about synthetic fibers, polymers, monomers, and we had also seen about some synthetic fibers are with us as examples. So let's talk about the first one, rayon. Got it? So beta, as you know that silk fiber को आप लोग जानते हैं, natural fiber obtained from silkworm, clear? So जो silk होता है बेटा, ये क्या होता है? ये costly होता है, clear? And as being costly, it can't be used by a group of people. सभी लोग इसका यूज, क्योंकि भाई कॉस्टली है तो सारे लोग तो प्रेफर नहीं कर पाते हैं, ठीक है? सो जब भी बेटा क्या होती है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है, तो उसका एक सब्स्टिट्यूट भी आता है, ठीक है, सो दैट ईच एंड एवरीवन could easily get that material in any form to use it. किसी न किसी फॉर्म में हम सभी लोग उसका यूज कर सकें, इसलिए एक सब्स्टिट्यूट भी आ जाता है. सेम थिंग इज हियर विथ अस ऑल्सो. रेयॉन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. गॉट इट? इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. वाई? बिकॉज it have the same luster like a silk. जैसे शाइन सिल्क फैब्रिक में होती है, सिल्क फाइबर में होती है बेटा, सेम इसमें भी होती है, क्लियर? सो नेक्स्ट थिंग, इट इज चीपर देन सिल्क. लो भाई आ गई बात, क्या है ये? सिल्क से चीपर होता है, सस्ता है. Now come to the next point, that is it is also known as regenerated fiber. Regenerated fiber भी हम इसे बोलते हैं. Why we call it as regenerated fiber? Because whatever the raw material, mainly we talk about cellulose, that is broken down and then being reused, reformed. Clear? जो cellulose होता है बेटा उसे पहले broke किया जाता है, ठीक है, and after being broken once, then it is being reformed again. That's why we call rayon as regenerated fiber. Clear रहेगा? So next, how it is being made, कैसे ये बनता है? So it is made from wood pulp. ये बेटा wood pulp से बनता है. And what we will do, we dissolve the wood pulp in alkaline solution. और जब बेटा जब alkaline solution में हम dissolve करेंगे तो हमें क्या obtained होगा? हमें मिलेगा एक thick liquid मिलेगा, ठीक है, and we pass that thick liquid through some tiny holes like spinneret. Clear? And क्यों हम टिनी होल से पास करेंगे? टू ऑब्टेन रेयॉन फाइबर्स. क्लियर? और बेटा यहीं पे नहीं स्टॉप होता है प्रोसेस. रेयॉन फाइबर जब हमें मिल जाता है तो उसे हम क्या करते हैं? उसे हम हार्डन करते हैं, टफ बनाते हैं. कैसे बनाते हैं टफ? उसे हम क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू पास करते हैं. क्लियर? सो after this process we can say that rayon is stronger. And one more thing here with us, it is easy to dye in various colors. बेटा ये easily dye हो जाता है different colors में. Got it? And one more thing, इसकी एक और property है बेटा, it absorbs sweat.
लो भाई, इसमें क्या हुआ, इसमें जो हमारी कॉटन, ठीक है, जो नेचुरल फाइबर्स की जो प्रॉपर्टी है वो भी हमें मिल गई, चीप भी है हमारे लिए, ठीक है। एंड एज वी नो दैट कि इट एब्जॉर्ब स्वेट, ठीक है, ये स्वेट एब्जॉर्ब करता है बेटा, सो इट इज कंफर्टेबल फॉर अस इन समर सीजन्स। क्लियर रहेगा ना। सी व्हाट वर द यूजेस ऑफ रेयन, हाउ इट इज बीइंग यूज्ड, कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, इट इज यूज्ड टू मेक एपरल, एपरल बनाने के लिए, लाइक सूट्स, जैकेट्स, स्पोर्ट्स वेयर। क्लियर, इस फॉर्म में यूज होता है भाई रेयन फाइबर। एंड वन मोर थिंग इज विद अस दैट एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट हैज अ सिल्की लश्चर, यानी इसके पास एक सिल्की लश्चर होता है। दैट्स वाई इट इज बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग होम फर्निशिंग्स। क्लियर, होम फर्निशिंग्स बनाने के लिए भी इसका यूज हम करते हैं। होम फर्निशिंग्स की बात करें तो होम फर्निशिंग में क्या होता है बेटा, लाइक टेबल क्लॉथ हो गया, कर्टेन्स हो गए, पिलो कवर्स हो गए, बेडशीट्स हो गए। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, this is all for today's class, and we will meet in our next class with some more synthetic fibers, their properties, their uses. Got it? So thank you and have a nice day.